السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے. آپ آئیں ڈاکٹر صاحب، آئیں کلینک پر آئیں. آئیں ڈاکٹر صاحب، یہاں آپ تشریف رکھیں. ڈاکٹر صاحب بیٹھیں. اور ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت صحیح ہے ڈاکٹر صاحب؟ رب کائنات کا بڑا کرم ہے، دعا ہے، شکر ہے. آپ سنائیں، طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کا کرم ہے. جناب آج ہمارے کلینک پر بڑے حیدرآباد کے بڑے عظیم ڈاکٹر اور ماشاءاللہ حکیم بھی ہیں، ہمارے استادوں میں سے ہیں، اور پروفیسر ڈاکٹر محمد اخلاق صاحب. تو ابھی ہماری ان پہ گفتگو ہو رہی تھی الرجی کے اوپر، اور ٹی وی سے اسٹارٹ ہوا تھا، جس میں ڈاکٹر صاحب نے آرسینک ایلبم کو بڑا اہم بتایا، اور اس کے علاوہ دوسری دوائیاں جو تھیں سورانیم کو جو نوسوڈ ہے اس کے بارے میں بھی بڑی تفصیل سے بات بتائی. تو میں ناظرین کو یہ چاہوں گا کہ ناظرین کو بھی اس نالج سے فائدہ پہنچے اور وہ اس سے کچھ فائدہ حاصل کر سکیں. تو میں ڈاکٹر صاحب سے معلوم کرنا چاہوں گا، ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اپنا تعارف ہلکا سا بتا دیں ناظرین کو، تاکہ اور وہ آپ کو، ویسے تو حیدرآباد کی مشہور جانی پہچانی شخصیت ہیں، بے تحاشا لوگ آپ کو جانتے ہیں، اور ماشاءاللہ کافی عرصے سے اس شعبے سے وابستہ ہیں اور خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اور دل جمعی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں. اور میرا یہ ماننا ہے کہ انسان کو دوسروں کے لیے، بلکہ دوسرے نہیں اپنوں کے لیے ہی آسانی پیدا کرنی چاہیے. اور یہ ڈاکٹر صاحب بڑی ان کی کاوشیں ہیں حیدرآباد کے اندر. تو ڈاکٹر صاحب آپ اپنا تھوڑا سا تعارف کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا الرجی کے بارے میں بتائیے گا ناظرین کو. رحمت و صلی اللہ رسول کریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہے جس نے اپنی قدرت سے اس کائنات کو تخلیق کیا. یہ بلند و بالا کہکشاں، زمین کے سینے پہ چیرتے ہوئے سبزہ زار، چمکتا سورج، جگمگاتے ستارے، نورانی چاند، گلوں کی مہک، چڑیوں کی چہک، کوئل کی کوک بنا کر اپنی عظیم الشان نشانی پیش کی. وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت، ماشاء اللہ، جس کو چاہے حکومت دے، جس سے چاہے حکومت چھین دے. ماشاء اللہ. زندگی اور موت سب میرے رب کے اختیار میں ہے. وہ ادنا کو اعلیٰ، اعلیٰ کو ادنا، ذرے کو آفتاب، آفتاب کو ذرہ بنا دے. دنیا کے بڑے سے بڑے رائٹر، بڑے سے بڑے ادیب، بڑے سے بڑے وزار میرے رب کی حمد و ثنا کرنے سے قاصر ہیں. لفظوں کے موتی پرونا بس، کائنات کی رانائی، آسمان کی وسعت، زمین سکڑ کر، سمندر پھیل کر میرے رب کی حمد و ثنا بیان نہیں کر سکتے. اور کروڑ درود سلام اس عظیم ترین ہستی پر جس کے درس انسانیت سے ہمارے مقدر جاگو. روشنی اس کائنات میں جس مقام پر بھی تھی، قندیل آسمانی کی کوئی نہ کوئی کرن تھی جو قلب نبی میں اتاری گئی. سدرۃ المنتہا کی حضور شاخوں نے جسے چولہا جلایا، وہ ایک رات اجالا ہو گیا زمانے میں، ہوا بھی ہو گئی شامل بھی اترانے. میرے آقا قرون سے کائنات میں آئے تو نماز بھی آئی، روزہ بھی آیا، زکوٰۃ بھی آئے، حقوق العباد بھی آئے، عورتوں کا ادب احترام بھی. تمام میرے کائنات کے ہیں. یہ تمام کائنات میرے سرکار کے صدقے سے قائم ہے. اگر سرکار نہ ہوتے تو رب کائنات فرماتے ہیں کہ میں خود بھی اس کائنات کو نہ بناتا. کیونکہ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود و سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو آپ بھی سلام بھیجو. اور جب سرکار آئے تو ابو بکر تھے تو صدیق ہو گئے، عمر تھے تو فاروق ہو گئے، عثمان تھے تو غنی ہو گئے، حضرت علی تھے تو شیر خدا ہو گئے. یہ سب میرے کائنات کی مہربانی ہے. ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے. ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد میرے خیال میں جتنی بھی لفظ سوچے ہیں، تیری مثال تیری حجم تو چھوٹے ہیں. نگاہیں عشق مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی
तो भाई मैं आपको बताता चलो, मैं अरसा है 45 साल से इस प्रैक्टिस से वापस था हूँ, 82 से। डॉक्टर साहब, आप पहले ये बताएं कि आप ये मैट्रिक करने के बाद जब आपने इंटर किया तो आप इसमें कैसे, कोई हादसाती तौर पे आए या कोई मुस्तकिल शौक था, किस तरह से आप इस फील्ड में आए? दरअसल मेरा एक खानदानी, मेरे फादर जो थे वो हॉस्पिटल में थे, मेरे ग्रेट फादर भी इंडिया से थे, क्योंकि जो अलवर से आए तो अलवर के हॉस्पिटल में वो थे वहाँ से, और वो इंडिया की क्रिकेट की महाराजा की जो बेहतरीन टीम थी उसके ऑलराउंडर प्लेयर थे, जो बहुत ज़्यादा उनकी रनिंग थी और बहुत अच्छे वो। उसके सिलसिले में, ये सिलसिला खानदानी हमारा सिलसिला है। हमने आँख खोली तो हम जब छोटे थे तो लाल बत्ती में हॉस्पिटल में चले जाते थे ईद और बकरीद के दिन, वहाँ डॉक्टर सब छुट्टी पे होते थे, तो फर्स्ट एड का काम हम छोटे से करते थे, किसी को ड्रेसिंग लगा रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो ये सिलसिला हमने हमारे जहन में पैदाइशी था और खानदानी सिलसिला था। तो ये मैं सन 1982 में मैंने ये तिब्बे यूनानी ये मैंने सिंध तिबिया कॉलेज से, जो पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा कॉलेज है, सन 1952 में ये कायम हुआ। इसके कायम करने में सबसे पहला जो हमारा प्रिंसिपल थे साहिब थे वो थे हकीम शमसुद्दीन साहब। सन 1952 में पहले प्रिंसिपल थे, उनके सरपस से आला मखदूम तालिबुल मौला थे। उसके बाद ये 2 साल तक जो है हकीम शमसुद्दीन साहब ने अपने बंगले में, जो आप समझ लें कोर्ट सिटी कोर्ट के सामने बराबर में पेट्रोल पंप के सामने एक खूबसूरत आप पुरानी इमारत देखेंगे, उसमें ये कॉलेज कायम था। उसके बाद अनिस साहब आ गए, तीसरे नंबर पे ये कॉलेज ओरेंटल, 2 साल के बाद ये तंजीर रहमानी गली में चला गया, फिर उसके बाद ओरेंटल कॉलेज हीराबाद में चला गया, फिर मुंतकिल होकर ये जो है कॉलेज कंटिन्यू यूसुफ में आ गया। उसके बाद सन 1971 में ये कॉलेज जो थे, ये सिंध तिबिया कॉलेज की इमारत सिंध सिटी कॉलेज में आ गई, जिसके चेयरमैन, पहले जो चेयरमैन थे वो प्रोफेसर कबीर साहब थे और प्रिंसिपल जो थे तहवर नजीर साहब थे। इससे सिलसिला चलता रहा। इसी कॉलेज को ये एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े पहले MBBS करने वाले जो पाकिस्तान इंडिया में डॉक्टर इब्राहिम शेख, जो मेंटल हॉस्पिटल की डिग्री उन्होंने ली थी, वो पहले प्रिंसिपल थे जो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल रहे। तो कबीर साहब उसके वाइस प्रिंसिपल थे उस जमाने में। तो मैं इस सिलसिले में, मेरा शौक था और मैं एज ए स्पोर्ट्समैन भी था। मैं मेरा नाम मैं आपको बताना भूल, मेरा नाम प्रोफेसर हकीम डॉक्टर मोहम्मद अखलाक शेख है। मैंने सिंध तिबिया कॉलेज से FPJ किया, अंसारी होम्योपैथिक कॉलेज से BHMS किया, फार्मेसी वगैरह मैंने जो थी वो लियाकत मेडिकल कॉलेज से की। ये सिलसिला मेरा 82 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मैं सबसे पहले तो ये बता दूँ, मैं सबसे पहले पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट पुलिस कम्युनिटी सेंटर जो है ये कायम की गई, इसका सबसे पहले मैं चेयरमैन हूँ और आज भी 24 साल से मैं चेयरमैन हूँ। और उसका काम ये है कि पुलिस और अवाम में जो दूरी है उसको ख़त्म करना। उसके बाद मैं अमन कमेटी में रहा, नारकोटिक कमेटी में रहा। अमन कमेटी में तो मौलाना मोहम्मद अली साहब की मेहरबानी है, वो मुझे लेकर आए, और नारकोटिक कमेटी में वसीम हसन नदवी साहब की मेहरबानी है, शफीकुर रहमान साहब ने मुझे नामजद किया। उसके बाद ज़कात, सबसे पहले नाज़िम सलाद जो थे गवर्नर साहब ने, वो हमें नामजद किया गया। फिर उसके बाद ज़कात उसर कमेटी में मैं चेयरमैन रहा, अमन कमेटी में रहा, नारकोटिक कमेटी में रहा। इसके अलावा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के मैं चेयरमैन रहा एजुकेशन कमेटी में। और बल्दिया की एक बहुत बड़ी मजलिस आमला होती है, सिटीजन कम्युनिटी बोर्ड, उसमें मजलिस आमला का मेंबर रहा। और मैं हैदराबाद के 3 बड़े स्कूल, उन स्कूलों को बड़ा एजाज़ हासिल है। सेठ कमालुद्दीन, जिसमें मैं अपने उसके प्रिंसिपल इफ्तिखार साहब थे, और अलामा इकबाल में इफ्तिखार साहब इसके प्रिंसिपल थे। तो वो उधर में चेयरमैन रहा। मुस्लिम हाई स्कूल में रहा 10 साल, 7-8 साल में शेख कमालुद्दीन में रहा। तो सीरत इस्लाम गर्ल्स हाई स्कूल, जो बहुत कॉम्पिटेंट एक खातून थी, जो आर्मी के फौजी जनरल ब्रिगेड के साहबजाद थी, वो उसकी प्रिंसिपल रही। वो बड़ा अच्छा डिसिप्लिन था, मैं वहाँ रहा। उस तरह की जितनी भी कमेटियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे ये एजाज़ मुझे हासिल है कि हकीम सईद साहब ने मुझे हाथ से बुलाकर उन्होंने पूरे सिलसिला में कन्वीन नामजद किया। इस तरह से मैं ये खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। तो आज डॉक्टर साहब, आपको इस वक्त इलाज के दौरान किन किन चीज़ों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा? होम्योपैथिक जो इलाज है ना, वो अलामतों का, हम मर्ज का नहीं, मरीज का इलाज करते हैं। हम सबसे ज़्यादा हम साइंस सेंटर पे जोर देते हैं। हमें
मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा जिस टॉपिक पे हम चलेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि होम्योपैथिक जो है बहुत ही, ये जब तक आप एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी नहीं जानते हैं तो आप होम्योपैथिक इलाज नहीं कर सकते। ये छोटी सी मिसाल मैं आपको दूंगा कि एक उंगली है, इसको हम कहते हैं डिस्टल फ्रिंजेस। हड्डी को क्या कहेंगे? डिस्टल फ्रिंजेस। इसके ऊपर जो मसल्स है इसको क्या, ये मसल चढ़ी है। तीसरे नंबर पे हड्डी है, फिर मसल्स है, फिर इसके मसल्स के बाद फिर इसकी चेंजिंग हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई इस पे झगड़ा हो गया है या जख्मी हो गया है तो हम सर्जरी कह देते हैं। इसी में चेंजिंग होती है तो हम पैथोलॉजी कहते हैं। इसी को अगर हम टाँके लगाते हैं तो ऑपरेशन सर्जरी कहलाती है। ये इस तरह से एक छोटी सी चीज़ जो है वो कितने स्टेज से गुजरती है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, सर्जरी, और आखिर में कोई झगड़े का केस होता है और ये रिपोर्ट इसी डिस्ट्रिक्ट फ्रिंजेस को अगर पुलिस केस कर दी तो ये मेडिकल लीक हो जाती है। तो ये एक चीज़ को हमें समझने के लिए बहुत डिटेल से जाना पड़ता है। जब तक हम मुकम्मल एनाटॉमी, इंसान के बदन की 206 हड्डियाँ, 639 पट्टों के बारे में जब तक हम नहीं जानेंगे, इंसान की बॉडी में नर्व कितनी है, क्रेनियल नर्व कितनी है, स्पाइनल कॉर्ड नर्व कितनी है, छोटी हड्डी कौन सी है, बड़ी हड्डी कौन सी है, लंबी हड्डी कौन सी है, अर्टिकुलर बोन कौन सी है, जब तक इन हड्डियों के बारे में, इन पट्टों के बारे में और इन आज़ा के बारे में हम नहीं जानेंगे तो हम मुकम्मल डॉक्टर नहीं बन सकते। मैं छोटी सी मिसाल दूँ, क्योंकि आप सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने रॉबर्ट हुक ने जब दरियाफ्त किया खुलिये को, तो खुलिया क्या है? खुलिया एक सेल्स है जो इंसान के अंदर वो तमाम काम करता है जो पूरी बॉडी में एक आम आदमी काम करता है। इस खुलिये, ये खुलिये को, इल्म को हम जानने को साइटोलॉजी कहते हैं, इल्म खुला कहते हैं। ये जब खुलिये आपस में मिलते हैं, ये खुलियों की तादाद 100 ट्रिलियन होती है। ये जब आपस में मिलते हैं नोक से बैठे तो ये बाप बन जाती है। तो बाप की 4 इकसाम होती है, असबी बाप, नर्व बाप, मस्कुलर बाप, वासिल बाप। ये तमाम उजलाती बाप, जिसको हम नर्व टिश्यू कह सकते हैं, मस्कुलर टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, इनकी तादाद 639 होती है। ये जब आपस में मिलते हैं तो ये अज़ा बन जाते हैं। जैसे दिमाग है, दिल है, फेफड़े हैं, मैदा है, जो भी आज़ा है ये आज़ा बनते हैं तो क्या बनते हैं? ये आज़ा जब आपस में मिलते हैं तो ये सिस्टम बन जाता है। अब सिस्टम हमारे बॉडी में 8 है। इन 8 सिस्टम को जानने को, अब ये मेडिकल की लैंग्वेज होती है, इसको जानने को, इनको समझने को और इनके इलाज का और अलामत, ये होम्योपैथिक तरीके का इलाज है। जब तक कि आप नर्वस सिस्टम के बारे में नहीं जानेंगे, अब मैं नर्वस सिस्टम से, ये बहुत डिटेल में हम चले जाएंगे, तो सबसे पहले मैं आपको नर्वस सिस्टम से वो बीमारी की तरफ लेकर आ रहा हूँ जो एक मेन चीज़ है। मिसाल के तौर पे एक पेशेंट आपके मदद में आता है और आप उसको देख रहे हैं सामने चलकर आ रहा है, सांस फूला हुआ है और थकावट सी महसूस हो रही है, तो सबसे पहले आप उसको देखेंगे तो वो सबसे पहले आपको ये कहेगा, डॉक्टर साहब मुझे हल्का हल्का बुखार रहता है, मुझे थकावट रहती है, मुझे ठंडे ठंडे पसीने आते हैं, मुझे नींद नहीं आती है, बेचैनी रहती है और खांसी, मुझे 6 हफ्तों से ज़्यादा से खांसी हो रही है और खांसी के साथ कभी कभार बलगम हरा आता है और मैं जब ज़्यादा खांसता हूँ तो मुँह से खून आना शुरू हो जाता है, मेरे सीने में दर्द होता है और मुझे भूख भी नहीं लगती। ये तमाम अलामतें, नींद नहीं आती, तो हमारा ज़हन जाता है कि ये क्या बीमारी हो सकती है। ये तो जब तक एक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर जब तक सही डायग्नोसिस नहीं कर सकता तो वो इलाज नहीं करेगा। सिम्टम ही अलामत बनते हैं, अलामत ही मर्ज बनता है। अब ये तमाम चीज़ें जब हम चले जाते हैं सोच में कि भाई बुखार भी हो रहा है, ठंडे ठंडे पसीने भी आ रहे हैं, बेचैनी भी हो रही है, भूख भी नहीं लग रही है, नींद भी नहीं आ रही है, खून की कमी भी हो गई है और थकावट भी हो गई है, ये तमाम अलामतें जब हम, सीने में दर्द भी हो रहा है और बलगम भी पीला और हरा आ रहा है और उसके बाद कभी कभार खून आ रहा है, तो जब हम एक्सरे कराते हैं तो मालूम होता है ट्यूबरक्लोसिस है। ट्यूबरक्लोसिस के लिए अब जाहिर है कि हमारे फेफड़े हैं, फेफड़ों में राइट साइड पे 3 लोग होते हैं, लेफ्ट साइड पे 2 लोग होते हैं। फेफड़ों का काम तो आपको मालूम है कि सांस में ऑक्सीजन लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करना है। तो ये तमाम अलावा जब तक कि आपको ये मालूम हो जाए कि आप एक्सरे चेस्ट कराते हैं कि उसको टीबी की अलामत है, राइट लोब में है, मिडिल लोब में है, लोअर लोब में है, तो फिर आप, जब आपको ये मालूम हो जाएगा कि तमाम अलामतें उसको आ रही हैं, तो अब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या करता है? होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ये करता है कि उन अलामतों का इलाज करता है। वो कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे अचानक जो है तो बुखार हो जाता है, तो आप उसको फर्स्ट टाइम जो रेमेडी है वो हेकोनाइट दे दें। वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे सर में दर्द भी हो जाता है तो बेलाडोल दे दें। वो कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे बलगम हरा आता है तो आप हीपरसल दे दें।
वो कहता है मुझे प्यास कम लगती है और बलगम पीला आता है तो आप ऊपर से पीला दे दें। वो कहता है मेरे सीने में खड़खड़ाहट है, खटखट करता है तो आप एंटीबायोटिक दवा दें। वो कहता है डॉक्टर साहब मेरे जब मैं खांसता हूँ तो मुझे नौजिया होती है तो आप एंटीबायोटिक दे दें। वो कभी कहता है कि मेरा खून जो है मुझे लाल आता है तो आप मेडिकोनियम फेरोमोन दे दें। ये हमारी अलामतें हैं जिसका हम इलाज करते हैं, मगर नो शॉट देना ज़रूरी होती है। हफ्ते में एक दफ़ा हम उसको बेसिलिन देते रहते हैं। ये तो है ट्यूबरकुलोसिस। डॉक्टर साहब आपने हिकमत भी की है और इलेक्ट्रो होम्यो भी की है और बी फार्मेसी भी की है माशाल्लाह, और बड़े अच्छे तरीके से आप नाजरीन को समझा रहे हैं, उनको नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको बेसिकली मज़ा किस में आता है? हिकमत में ज़्यादा आता है, होम्यो में ज़्यादा आता है, या बी फार्मेसी की लाइन में ज़्यादा आता है? अब ये है कि होम्योपैथिक बहुत 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 मेहनत मांगता है, बहुत ये तो यहाँ तो हम करते हैं मैट्रिक पास। जर्मन में तो एमबीबीएस के बाद एडमिशन मिलता है, होम्योपैथिक जो है वो एमबीबीएस करने के बाद एडमिशन देते हैं। होम्योपैथिक बहुत ही, क्योंकि ये हमारी अद्वियात जो है वो इंसानों पर अप्लाई की गई है। अगर हम मिसाल के तौर पर एक दवा संख्या लेते हैं तो संख्या खाएंगे तो बेचैनी होगी, प्यास लगेगी और आप देखें बार बार पेट में मरोड़ होगी, तो आप समझेंगे कि आर्सेनिकम की अलामत है। मिसाल के तौर पर एलोवा लेते हैं, एलोज, तो आप देखिए पखाना निकलता जा रहा है तो आप एलोज दे देंगे। आप देखिए पिचकारी की तरह दस्त हो रहे हैं तो प्रोटेक्टिव अलामत ये है कि जमाल खोटा की पिचकारी का यही अलामत साइंस सिम्टम देख के उसी को इलाज में मिसल कहते हैं। जिस चीज़ से जो चीज़ बीमारी होती है उससे इलाज करते हैं। आजकल जो वैक्सीनेशन जो बनी है, जैसे कि आपने देखा एलोपैथिक सिस्टम जो है, जैसे टेटनस है, ये कुत्ता काटता है तो हाइड्रोफोबिया दे देते हैं, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। ये तमाम एलोपैथी सिस्टम की जो मेडिसिन है होम्योपैथिक से निकली है। हमारी तमाम अद्वियात मौजूद है और हम इलाज में मिसल करते हैं, जिससे जो मर्ज पैदा होता है वो दवाइयाँ देती है। तो इस तरह से फ़ायदा करती है। हनी बनी आदमी कहते हैं कि इस तरह से फ़ायदा करती है जिस तरह से एक कांटा चुभता है तो आदमी चिल्लाता है। ये अगर आपकी सही से दवा लग गई तो आपकी नर्व जो जा रही है दिमाग में, 12 नर्व है, ऑप्टिक नर्व है, ऑल्फैक्टिक नर्व है, ऑगस्ट वेगस नर्व है। अब मैदा मुतासिर हो रहा है तो वेगस नर्व में आप उसको नर्व को कंट्रोल करें। आप वेगस नर्व में अगर मैदा है तो नक्श का, तो हमारी अद्वियात जितनी भी है वो नर्व को कंट्रोल करती है और ज़बान पे देने से हल हो जाती है। क्योंकि बहुत से माशाल्लाह नाज़रीन, आपको बहुत नॉलेज प्रोवाइड हो रही है और प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इखलाक साहब आपको बहुत अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इन्होंने जहाँ से सिंध तिबिया कॉलेज से जो हिकमत का कोर्स किया, आज माशाल्लाह वहाँ पे लेक्चरर प्रोफेसर भी हैं और बड़ी अच्छी आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आप बता रहे थे, तो फिर ये हम ज़्यादातर जो, जैसे अब हिकमत भी किया हुआ है, होम्योपैथिक भी किया हुआ है, इलेक्ट्रो होम्यो भी किया हुआ है, तिब्ब नबवी, ये सारे हम जो, तो ज़्यादा हमारे लिए सूटेबल जो इलाज जिसको हम अपनाएं, हिकमत ज़्यादा बेहतर रहेगा या होमियो को ज़्यादा तरजीह दें? मैं थोड़ा बताता चलूँ, थोड़ा सा सिलसिला मुनक़ता हो गया। वो कहते हैं कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जहाँ होगी वो दिया रह जाएगा। ये कंपटीशन का ज़माना है। एक एफटीजे तबीब भी बैठे हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, एलोपैथिक डॉक्टर। उसमें अगर आप कुछ जानते हैं, आपको नॉलेज है और दवाओं की सही तस्वीर कर सकते हैं, एक तो आप बेहतरीन डॉक्टर हैं, बेहतरीन तबीब हैं। क्योंकि एलोपैथिक सिस्टम में तो ये है कि वो चंद दवाइयाँ हैं जिसको हम मिक्स करके अगर दे दें, 6-7 दवाइयाँ सब मर्ज में चलती हैं। ये तो एक आम सी बात हो गई है, हम 8-7 में। तिब्बे यूनानी एलोपैथिक में ये है कि अपना सिलसिला थोड़ा सा साइड हो गया। तिब्बे यूनानी मिजाज पे इलाज करती है। सफरा है तो सफरा की दवा दे देते हैं, आलू बुखारा है। बलगम है तो मेलेटी दे, बलगम मिजाज है। हिकमत में मिजाज को देखा जाता है, सफरा भी मिजाज है, बलगमी मिजाज है, सोदा भी मिजाज है, गम भी मिजाज है। ये मिजाज जो है, मिजाज की अलग अलग दवाएं हैं। सफरा में आलू बुखारा है, किसी में मलेटी है, किसी में मुंडी है, तराशा है। ये है अलामत। मैं चल रहा था, सिलसिला हमारा चल रहा था कि ट्यूबरकुलोसिस और बेसिलिन के बारे में। सही। क्या है कि ट्यूबरकुलोसिस जो है, टीबी जो है, ये मुख्तलिफ जगहों पर होती है। मिसाल के तौर पर दिमाग है, दिमाग के अंदर 3 झिल्लियाँ होती हैं। एक तो दिमाग के बारे में, सर के बारे में बताते चलूँ, सर की 8 हड्डियाँ होती हैं। पेरेंटल बोन, पेरिटल बोन, कैपिटल बोन, एथामाइड बोन, स्पाइनोइड बोन। इसके अंदर 3 झिल्लियाँ होती हैं, पाया मीटर, ड्यूरामीटर, ऑर्गोनाइड मीटर। ऑर्गोनाइड मीटर के दरमियान में फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड में क्या होता है कि टीबी का जरासीम जो है वो दिमाग पे चला जाए, जिसको हम टीबी मेनिंजाइटिस कहते हैं। जहाँ भी फ्लूइड बढ़ जाएगा वहाँ की दवा होगी एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका और हम बेहतरीन दवाई है जो हम ट्यूबरकुलोसिस में देते हैं। अगर वो नेफ्राइटिस सिंड्रोम में, अगर गुर्दों के अमराज में एडिमा हो गया है आपकी आंखों के नीचे, तो आप एपिस मेलिफिका दे देंगे।
इसी तरह से हार्ट की बीमारी में अगर सिस्टाइटिस में अगर जहाँ भी पानी पड़ गया है, और ये पेलोरी जैसी एफिजन है, फेफड़ों के अंदर पानी फ्लूइड का काम ये है, पेलोरोसी का काम ये है कि ये आने वाले लंग्स को कंट्रोल करता है। लंग्स जो है हमारा राइट साइड पे 3 लोब्स होते हैं। राइट साइड का लोब जो है उसके तीन लोब्स होते हैं राइट फेफड़ों के, अपर लोब, मिडिल लोब, लोअर लोब। ऊपर के हिस्से को एपेक्स, नीचे के हिस्से को फेस कहते हैं। इसका वजन तकरीबन जो है 11 सेटाक होता है, 22 वोल्ट होता है। और लेफ्ट साइड का लोब जो होते हैं वो 2 होते हैं, अपर लोब, लोअर लोब। उसका वजन तकरीबन 10 सेटाक या 20 ओंस होता है। ये फेफड़ों का काम की तो आपको मालूम है कि 1 मिनट में हम सांस लेते हैं तो एक जवान आदमी 1 मिनट में 14 दफ़ा सांस लेता है, बच्चा नौजायदा बच्चा 40 दफ़ा लेता है, ज़ईफ आदमी जो ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकोनमोनिया हो गया है, ये पेलोसी हो गई है, इस किस्म की बीमारी होती है, इसमें सांस की रफ्तार बढ़ जाती है, ब्रोंकोलस्थमा। हमारी जो होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट में मैं आया था कि होम्योपैथिक इलाज जो है वो दुनिया का बेहतरीन तरीन इलाज है। उसकी तमाम मेडिसिन हमने जो है अप्लाई की, वो इंसानों पे की, जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो अलामतें नोट करते हैं वो हम लिख लेते हैं। एलोपैथिक सिस्टम है वो जानवरों पे इलाज करता है, खरगोशों पे, क्योंकि वो जहनी अलामत नहीं बता सकता। हमारे जहनी अलामतों का बेहतरीन इलाज जो है, अगर एक मिसाल के तौर पर एक खातून बैठी है, वो बार बार रो रही है, गमगीन है, तो हमारी बहुत सी दवाएं, परसिटिला, एग्जिस, इस किस्म की दवाई है। एक औरत है चिड़चिड़ी है, उसकी अलग दवा है, केवल एक औरत है हंसमुख है, ओनास्मोटिक। इसी तरह से तमाम अद्वियात जो हमारी एंटीडोट्स हैं। अगर मिसाल के तो पानी का एंटीडोट्स एकोनाइट, अंडे का कैल्कुरिया का, दूध का कैल्कुटिन, सब्जियों का आर्सेनिकम, दाल का सल्फर, ये एंटीडोट्स हैं जो मरीजों के चेहरे को देख के, उसके साइन सिम्टम देख के हम इलाज करते हैं। तो मैं आ रहा था ट्यूबरकुलोसिस, बस इस तरह से ये मैं इलाज अरसे दराज से कर रहा हूँ। और आप जब तक जानते नहीं हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंसान के सर में 8 हड्डियाँ होती हैं, उनका क्या काम है। ये नाजुक आज़ा की हिफाजत करती है ब्रेन की। हमारे सीने पे 12-12, 24 हड्डियाँ होती हैं, इनका काम है फेफड़ों की हिफाजत करना, दिल की हिफाजत करना, नाजुक आज़ा की हिफाजत करना। इंसान के अंदर 206 हड्डियाँ होती हैं, जैसे सबसे बड़ी हड्डी हमारी जो होती है वो फीमर बोन होती है, और सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो हमारी एस्टप्स बोन कहते हैं। इनकस मेलस एस्टप्स। एस्टप्स ये होती है कि कान के अंदर सबसे छोटी बोन होती है, और सबसे बड़ी बोन हमारी फीमर होती है। और सबसे कुछ बोन्स अनरेगुलर होती है, जैसे चेहरे की बोन्स हैं, उंगलियों की बोन्स हैं, कुछ फ्लैट्स बोन होती है, जैसे एस्किपुला बोन्स है। तो इस तरह से ये हड्डियाँ हैं हमारी 206। तो ये 206 हड्डियों का काम ये, इसके अंदर 40 सुराख होते हैं, जिन्हें हम फोरामेन कहते हैं, जिससे खून के शुद्ध जर्रात हासिल करते हैं। और बच्चा माँ के पेट में यॉर्क सेक से हासिल करता है रेड ब्लड का। अब ये बहुत लंबा हो जाता है। अब ट्यूबरकुलोसिस की खास अलामत ये है कि एनीमिया हो जाएगा। जब आपको पता है एनीमिया हो जाएगा, हेमोग्लोबिन कम होगा, तो आप कोई से भी आयरस वगैरह दे देंगे, ये उसका इलाज है। अगर बुखार हो रहा है तो आप एकोनाइट दे देंगे, फेरम। अगर वो बच्चे को किसी को भूख नहीं लग रही है तो हम अल्फा लिफा दे देते हैं। अगर आप देखते हैं वीकनेस हो गई तो 5 दे देते हैं। इसी तरह से पुराना बलगम, किसी को अगर बलगमी मिजाज है और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो हमारी एक दवा है यरबा सेक्टर बारसोल्फिन। ये बेहतरीन इलाज है, मगर इस यहाँ तक लोग जाते नहीं हैं। मगर हम उसके काज को, उनकी साइन सिम्टम को, उनकी अलामत को, उसके मर्ज को, उसकी उसके मरीज को, उसकी तमाम बॉडी रेस्ट्रिक्टर को देख के इलाज करते हैं। अब क्या है कि ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है कि ESR इंक्रीज हो जाता है, लिम्फोसाइटिस बढ़ जाते हैं, ये ESR बढ़ जाता है, मॉन्टेक्स टेस्ट में वो पॉजिटिव आ जाता है, एस्पुटम बलगम टेस्ट में वो पॉजिटिव होता है। तो ये हमारे टेस्ट होते हैं, ये हमारा इलाज होता है। तो ये हम आ रहे थे। आज का मौजूद इतना ही काफ़ी है कि ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट के बारे में नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे। स्किन डिजीज में, स्किन डिजीज क्या होती है, ये किस तरह से वबाई अमराज कर रही है, एक्जिमा क्या होता है, सोरासिस क्या होती है, एस्केमिक क्या होती है, वायरल इन्फेक्शन क्या होता है, ये हर्पोजिस्टर क्या होता है, ये तमाम अलामत जो जिल्द की हैं वो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बताएंगे। तो हकीम साहब, डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो आया था आपके पास मिलने के लिए, आपने अचानक सवाल कर डाले। डॉक्टर साहब, आपसे भी मेरे को भी बड़ी खुशी हुई और बहुत अच्छा नॉलेज आपने प्रोवाइड की। जो हमारे नाज़रीन हैं, देखने वाले, उनको भी माशाल्लाह इससे नॉलेज मिली होगी। और मैं ये इस तवज्जुह से ये बताता चलूँ कि इसका बेसिक मकसद जो था वो यही था कि नॉलेज शेयरिंग। तो लोग पुराने वक्तों में लोग नॉलेज को लेके चले जाते थे। अब ये जो चैनल आए हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, नॉलेज एक प्रोवाइड भी की जा रही है। आम आदमी को भी नॉलेज मिल रही है और सीखने वालों को भी नॉलेज मिल रही है। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि डॉक्टर साहब को वीकली नहीं तो 15 दिन में या 20 दिन में या 25 दिन में एक इनका वीडियो रिकॉर्ड किया जाए और नॉलेज प्रोवाइड किया जाए। इसी के साथ एक बात करें। डॉक्टर साहब, इसके साथ ही हम डॉक्टर साहब से अलविदाई कोई कलाम सुन लेते हैं जाते जाते।
تاکہ ایک اچھی اختتام ہو اور ناظرین کو تھوڑا سا خوشی کی لمحہ بھی ان کو میسر آ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کوئی بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے، تو کوئی فرشتہ یا پیغمبر بھی نہیں ہے، تو علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے، پر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جو کچھ بھی ہے تو اپنی حدوں کو پہچان، رحمان کی پکڑ سے تو باہر بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھر کے کسی پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے الوداع کہتے ہیں، اور یہ ویڈیو کیسی رہی تو آپ ہمیں کمنٹس کے اندر بتائیے گا، اور ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بھی کوئی اگر سوال کرنا چاہیں تو میں نیکسٹ ویڈیو کے اندر وہ سوال رکھ دوں گا آپ کے، تو کمنٹس کا میرے کو آپ کو انتظار رہے گا، اور ڈاکٹر صاحب کے خیالات اور علم آپ کو کیسا رہا اس سے بالکل جو بے دھڑک ہو کے آپ کمنٹس دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، اور اس امید کے ساتھ جہاں رہیے خوش رہیے، مسکراتے رہیے۔ اللہ حافظ۔